Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. As you know, we are carrying on with the revision of this chapter, Nationalism in India. A lot of points we have already completed and we are towards we have reached to the mid of the chapter. One big movement by Mahatma Gandhi, we have already talked about it, and that was the non-cooperation. So here on what we are talking about is the civil disobedience movement, how it had started. We have talked about the background as well, that the people who were involved in this movement, all these people, they belonged to the masses, to the class, to the middle class, from the upper caste to the lower caste. There was no caste system as such seen in these big movements. Got it? So we were talking about it. We wanted to discuss about it in detail, that the participation that had started with the Dandi March. A lot of people who were involved in this movement, from all over India. Majorly, the thing that was evident here, what we needed to understand, the thing that was evident here is that people had made up their mind to break the salt law. Salt law was to be broken, as you all know it very well. Making salt was the monopoly of the Britishers. They never allowed any Indian member to manufacture salt. No Indian company was given a permit to manufacture salt. So this was one of the major reasons that why Indians were very annoyed with the Britishers. And salt, as you know, one of the most important items without which a person's life cannot be imagined. So when there was tax on salt, the Indians made up their mind that now it was the time when they needed to oppose this oppressive policy, the oppressive conditions in which the Britishers have put the Indians. Got it? So Salt Law, Dandi March was organized, and the people, they went to the coastal area of Dandi, coastal area of Gujarat, Dandi, and the march started. 78 volunteers, 250 miles, 24 days. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि children, whenever you mention about civil disobedience movement, you have to mention about all these points. Got it? So make it sure, be very clear on this, that you need to mention about the Dandi March and the salt law, the breaking of the salt law. Another major important thing that is there is the participation of the people. Got it? Isme, one thing more is there, Gandhi-Irwin Pact. Please do remember the Gandhi-Irwin Pact. This pact had a lot of impact on the Indian political system, and the Indians understood the practices that the Britishers were going through, and how they were trying to cheat the Indians at all points. Got it? So Gandhi-Irwin Pact that was signed, isme all the political prisoners that were there, around 1 lakh people were behind the bars. Gandhiji asked that British government should release them. Okay. And now the next thing that we had started, participation of the people. Participation, सबसे पहले जिनके बारे में हमने बात की, they are the rich peasants and the poor peasants. Rich peasants में we talked about the patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. Their participation in the movement, because they were the people who were producing commercial crops, cash crops. तो आप समझ सकते हो that cash crops जो grow कर रहे हैं, the people who are growing cash crops, they might be giving so much of cash to the Britishers. हाँ, तो ब्रिटिशर्स को जब यहाँ से बहुत सारी इनकम हो रही है in the form of money, तो they understood
they were very clear on this कि इन लोगों का तो नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन they were not ready to remit the taxes as revenue payment was very difficult for this rich peasants. इनके लिए स्वराज क्या था? It was just the struggle against high revenues. इतना ज्यादा जो टैक्सेस लिया जा रहा था, लेकिन they were deeply disappointed, very disappointed जबकि movement was called off. हाँ, because Gandhiji had to go and attend the second roundtable conference. So when the movement was called off, these rich peasants were feeling very rejected and dejected. उनको लगा कि ये क्या है? इतना enthusiastically they were participating, and suddenly this calling off the movement was a big blow to them. So without the revenue rates being, अभी मतलब Britishers were making up their mind to revise the revenue rates, and so when the movement restarted in 1932, many people refused to participate. They said that they are not ready to participate and they did not want also. Poor peasants में क्या था? They were also not interested, and peasants में क्या था ना? They used to work as rent. ठीक है, they were when the rich peasants का हमने ये पढ़ा था that they were disappointed when the movement was called off. अभी जब हम poor peasants के बारे में देखेंगे, when we talk about the poor peasants, we will be understanding 2-3 things that's important that you need to understand here. क्या था poor peasants का? Their way of participating in the movement was totally different. They were the people who were working as tenants. ठीक है? Now poor peasants, ठीक है, worked as tenants. Tenants means tenant होते हैं जो किराया देते हैं. तो इनकी अपनी जमीन तो होती नहीं थी, तो they used to take on rent land from the जमींदार और the जागीरदार, और उसी लैंड के ऊपर खेती करते थे, और उसके बाद जितना रेंट होता था वो रेंट दे देते थे. नाउ व्हाट हैपेंड कि द क्रॉप फेलियर हैड टेकन प्लेस, पूरी तरह से अनाज एकदम से ध्वस्त हो गया था, तो दे वर अनेबल टू पे दिस रेंट. ये पे नहीं कर पा रहे थे, वर्क एज टेनेंट्स इन द फील्ड. ठीक है, एंड they were unable to pay the tenant. ठीक है, they were unable to pay tenant. Okay, now what happened? The depression continued, cash incomes इनका खत्म हो गया था, and ये क्या था ना? This movement was carried on by socialists and communists. तो इससे क्या होता था? देयर वॉज अनेबल टू पे, आई एम सो सॉरी, आई हैव रिटन हियर टेनेंट, इट इज नॉट टेनेंट. दे वर अनेबल टू पे द रेंट, टू पे रेंट. ठीक है, किराया नहीं दे पाते थे. सो दे वर अनेबल टू पे द रेंट. व्हेन दे वर अनेबल टू पे द रेंट, तो ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू हरास देम. और जमींदार ऑल्सो, जमींदार क्या करते थे ना, इनकी शिकायतें कर देते थे ब्रिटिशर्स के पास. तो ब्रिटिशर्स तो द पीपल हु वेर वेरी क्लोज टू देम, या जो उनको लगातार जिनसे उनको पैसे मिल रहे हैं, द पीपल हु आर कंटिन्यूअसली पेइंग देम द मनी, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम. उनका भला उनको पहले नजर आता था. गॉट इट? सो दैट वाज देयर. इससे क्या हुआ कि द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वेर रेजिंग द इशू. कांग्रेस was not supporting the no rent campaign. इनका क्या था ना, poor peasants, they carried on with एक इनका कैंपेन था नो रेंट, कि हमने काम तो किया है, अब इसमें जो भी अनाज हुआ है वो हम अपने पास रखेंगे, हम आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे. वी आर नॉट गिविंग यू एनी मनी. सो नो रेंट कैंपेन था इनका. लेकिन क्या हुआ, इसमें ये समझने की कोशिश करो दैट कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग इट. Other leaders, Congress and other leaders,
were not supporting it. ठीक है, उनका ये कहना था ना कि बार बार क्या होता था कि आई टोल्ड यू ना, पुअर पीजेंट्स हैं, गरीब हैं, बहुत दिन से सताए हुए हैं, एंड सडनली दे हैव गॉट अ चांस, तो देयर मूवमेंट यूज्ड टू गो अ बिट वायलेंट, थोड़ी सी मारपीट होने लगती थी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में ना बहुत एक अच्छा सा रिलेशन जो है वो नहीं डेवलप हो पा रहा था। दैट वाज द थिंग एवरीवेयर। अभी क्या था, नॉन कोऑपरेशन में भी द सेम थिंग हैड हैपेंड, दैट द पीजेंट्स हैड अकस्टम टू violence, and Gandhi Ji's campaign is saying non-violence. So when Gandhi Ji's campaign is saying non-violence, तो violence थोड़ा सा भी जो है ना ही गांधी जी को एक्सेप्टेबल था और ना ही कांग्रेस के अदर लीडर्स, बिकॉज कांग्रेस एंड इट्स आइडियोलॉजी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। जो गांधी कह रहे हैं वही चीज होगी, दिस वॉज देयर मेजर मार्क, एंड इसी चीज को वो फॉलो कर रहे थे। दे फेल्ट कि दे वर वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट, उसमें उनको काफी कामयाबी मिल रही थी, इसलिए भी वो चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है ये इसी तरह से कैरी ऑन होता रहे। अनदर थिंग, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, वी हैव रीड अबाउट द रिच पीजेंट्स एंड द पुअर पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स का जो कैंपेन था दैट वाज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। They did not want to pay any tax. They did not want to pay any revenue. Poor peasants का क्या था, no rent campaign, कि as tenants they are working on the land and उनको जो किराया जो देना है उस land का, they refuse to pay that किराया. Got it? So it was like a no rent campaign. Got it? So this was there. Now the other category which was very readily participating in this movement, where देखो हमने अभी पहले गरीब लोगों के बारे में पढ़ा, गरीब लोग मीन्स पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, the people who were attached to the I mean to from a very lower category, उनके बारे में हमने पढ़ा। Now we will be studying, we will be understanding about the rich, about the business category. Got it? So अब जो ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे दैट इज द बिजनेस क्लास। गॉट इट? यस, ये जो बिजनेस क्लास थे और इनका जो मूवमेंट था, इट हैड अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। पूरी चीजों के ऊपर जो है इनका एक अलग ही इम्पैक्ट था। रिच पीपल, मनी पीपल, ब्रिटिशर्स को भी इनका साथ चाहिए था, एंड माइंड यू कांग्रेस ऑल्सो वांटेड देयर सपोर्ट। यू नो व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, व्हेन वी आर कैरिंग ऑन विद सच अ बिग मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट जब चला रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, तो वन थिंग दैट इज रियली रिक्वायर्ड इज मनी मनी मनी, पैसे चाहिए। और कांग्रेस के पास ये पैसे कहां से आएंगे? यस, इट वॉज दिस ग्रुप दैट वॉज प्रोवाइडिंग देम विथ मनी। गॉट इट? तो क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये कैसे अपने आप को रिलेट कर रहे थे? व्हाट वाज देयर मोड ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस, और इनको सिविल डिसोबीडियंस से क्या करना है? गॉट इट? सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओके, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Indian merchants and industrialists made huge profit. ठीक है, Indian merchants made huge profits. काफी पैसा कमाया इन्होंने। यस, हाउ? अरे भाई, सामान जो बाहर जा रहा था, ब्रिटिशर्स रिक्वायर्ड सो मच ऑफ मटेरियल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इतना सारा जो सामान चाहिए था किसने प्रोवाइड किया? द इंडियन इंडस्ट्रीज फुलफिल्ड ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। और ये इंडस्ट्रीज कौन चला रहे थे? ऑफकोर्स दिस बिजनेस क्लास, द इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु वर देयर, दे वर रनिंग दिस।
तो इंडियन मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था एंड दे हैव बिकम वेरी पावरफुल इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नाउ दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. प्लीज अंडरस्टैंड कहां से इनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ. सो मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. नाउ they wanted to expand their business. अपने बिजनेस को ना थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे. कौन नहीं चाहेगा? Nobody will want a stagnant thing ना. ब्रिटिशर्स का तो लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या था ना कि एक बार ही प्रॉफिट कमा लिया है ना, अभी बस चुप रहो. They reacted against colonial policies. क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको सामान चाहिए था, तो हमने इनकी इंडस्ट्रीज को खोलने में इनकी मदद कर दी. नाउ व्हाट हैड हैपेंड दैट दीज बिजनेस कैटेगरी वर बिकमिंग द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, व्हिच वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू देम. कि उनको तो कंपटीशन पसंद ही नहीं था. यहां तक कि नमक की फैक्ट्री भी नहीं लगाने दे रहे थे. नमक के लिए भी उन्होंने अपनी मोनोपोली लगाई हुई थी. So how are they going to tolerate this kind of an activity from the from the Indian industrialist? So they were opposing the policies that restricted business activities. ठीक है? Business class were opposing the policies. इनकी चीजों को बार बार रोक देते थे. अपना सामान इंपोर्ट तो करवाना चाहते थे, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर हाई रेट्स वेर देयर. गॉट इट? अपोजिंग द पॉलिसीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन बाय ब्रिटिश ऑन देयर ट्रेडिंग सिस्टम. उनके हर एक चीज के ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज लगाना शुरू कर दिया. They wanted protection against import of foreign goods. Indian markets were filled with the foreign goods. Business class said कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर हम कहाँ लेके जाएंगे. एक्सपोर्ट आप करने नहीं दे रहे हैं, इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं. So you have captured the Indian market and you are not allowing us to take our goods outside also. So what will happen? Business तो collapse कर जाएगा. There will not be any income. तो इस ऐसे बिजनेस का क्या मतलब है? Are you understanding the trouble that the business people were facing in India? Try to understand कि चारों तरफ से इनको बांध के रख दिया गया था. इनकी एक्टिविटीज को स्टॉप किया जा रहा था. So that was something that was objectionable. तो इनका डिमांड क्या था? They wanted protection. They wanted protection against import of foreign goods. All the market, Indian markets that were filled with the foreign goods. तो वही बात है that they were unable to export, and the rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. ठीक है? Sterling was the currency, the foreign currency that was there, the foreign exchange ratio. ठीक है? 1 sterling के लिए उस समय भी शायद 30 या 35, जैसे अभी है ना डॉलर एंड यूरो, ऑल दीज आर द करेंसीज. कितना इंडियन करेंसी देना पड़ता है. तो वहां की चीजें जो यहां आ रही हैं उसके लिए कोई टैक्सेस नहीं है. एंड वॉट एवर मटीरियल वॉज बीइंग एक्सचेंज्ड और एक्सपोर्टेड, हाई टैक्सेस वेर टेकन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज देयर. ठीक है? इसको ये दिस इज देयर. रूपी स्टर्लिंग आई एम सॉरी, रूपी स्टर्लिंग exchange of money. Got it? Foreign exchange, exchange of money ratio was very high. Ratio was very high.
ठीक है, वही $1 के लिए कितना रुपीस देना है, इंडियन करेंसी का वैल्यू एंड फॉरेन करेंसी का वैल्यू, दैट वाज समथिंग दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल. तो बिजनेस पीपल वेयर फेसिंग अ टफ टाइम, दे वेयर फेसिंग अ हार्ड टाइम. तो बिजनेस इंटरेस्ट के लिए टू इंक्रीज देयर बिजनेस दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920. ओके, कोई भी खुश नहीं था ब्रिटिशर्स से. देखो यहां ये समझने की कोशिश करो दैट नो बडी वॉज हैप्पी विद द ब्रिटिश, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, everybody from top to bottom were opposing the British policies and British things. Okay, so Indian Industrial Commercial Congress, Indian Industrial Commercial Congress was established in 1920. कमर्शियल कांग्रेस, इसको कांग्रेस का पूरा पूरा सपोर्ट था. कांग्रेस की जो मनी रिक्वायरमेंट थी वो भी ये बिजनेस क्लास ही पूरा कर रही थी. कांग्रेस की अपना इंटरनल इनकम वाज नॉट देयर. वेरी मिडिल क्लास पीपल वेर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस. So whenever Congress needed money for any movement to carry forward, so they used to look towards this business class, business category. Got it? So Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, ठीक है, आज भी है. This organization is still there. Please remember, FICCI was formed in 1927. औध किसान सभा किसानों के लिए था, तो ये फिकी जो था ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था. फॉर द बिजनेस कैटेगरी FICCI was formed. क्या था? What was this? Federation of Indian Chamber Indian Chamber of Commerce and Industries. Got it? Big industrialists, all the industrialists together form this organization, form this formal place where they can sit and discuss their problems. सबकी प्रॉब्लम एक ही थी. ठीक है, सारे लोगों को ब्रिटिश एट्रोसिटी से छुटकारा चाहिए था. एंड इसमें मेंबर्स कौन थे? बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वेर देयर. आई टोल्ड यू दैट बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वेर द मेंबर्स. कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास. मेंबर्स वेर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास. Okay, Birlas, Tatas, Purushottam Das, Thakur Das. I'm sorry, it is the same name. G.D. Birla and other industrialists. Okay. Birlas are also very old people and other industrialists. ये सारे लोगों ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया. एंड एम एक ही था कि ब्रिटिश पॉलिसीज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोज करना है. फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट? मेजर, ठीक है, एम सबका एक ही था. एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि कॉलोनियल कंट्रोल, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो ब्रिटिश कंट्रोल था, दैट वाज द हाईएस्ट ऑब्जेक्शनेबल थिंग. हर एक चीज को ब्रिटिश अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे थे और इकोनॉमी
was totally controlled by the British. बाकी की चीजों में भले ही इंडियंस को थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दे दें, लेकिन इकोनॉमिक मैटर्स तो दे एब्सोल्युटली वांटेड टू कीप इट इन देयर हैंड्स. वो बिल्कुल भी इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे. Okay, so this was objectionable. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. They said कि whatever is imported, बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसकी डीलिंग वो नहीं करेंगे. Most businessmen they saw Swaraj as a time जबकि colonial restrictions जो हैं, all the colonial restrictions on business would no longer be there, exist. And trade, and they wanted that the trade and business should flourish. All the industries should flourish. हमेशा हर एक चीज में ब्रिटिश कंट्रोल was very annoying. Okay, they wanted Indian trade and business to flourish. ठीक है, दिन दूनी रात चौगनी इंडियन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम अगर बढ़ेगा तो ये सबके लिए अच्छा है. लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स फेलियर वाज बिजनेस ब्लो. जितने भी बिजनेस ग्रुप थे ना, अभी क्या था कि इनका भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो गांधी जी वापस आए ना, दैट वाज अ वेरी बिग आई मीन setback to all the people who were very enthusiastically participating in the movement. जितने लोग बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे ना, उनके लिए एक बहुत ही आई मीन बड़ा दर्द भरा समय था. आई वुड लाइक टू पुट इट इन दिस मैनर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता था ना, वेन एवर देयर वॉज सम रायट हैपनिंग और वेन देयर वॉज सम वायलेंट एक्टिविटी हैपनिंग, कुछ भी तोड़ फोड़ होता था. अभी जैसे कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो जब वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो कहा जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, द इंडस्ट्री दे आर वर्किंग, उसी को बंद किया उन्होंने. और इंडस्ट्रीज किसकी थी? इंडियंस की थी. तो नाउ व्हाट हैपेंड ना, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फेल्ट कि ये तो उन्हीं का नुकसान हो रहा है. दे वर द वंस हु आर फेसिंग द लॉसेस. So initially they supported the movement, but later on they business देख रहे थे कि बार बार रुक रहा है. एंड सोशलिज्म, यंगर मेंबर्स कांग्रेस के जो हैं, दे वर डोमिनेटिंग द कांग्रेस. अपनी बात रखने की कोशिश करते थे. द एजुकेटेड क्लास एंड द एलीट ग्रुप दैट वाज देयर, उसकी बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी. इन सारी चीजों को लेके क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का मन जो है वो थोड़ा फिज डाउन हो गया. गॉट इट? सो दिस इज देयर फर्दर, और इसके बारे में आगे हम लोग बातें करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो माय डियर चिल्ड्रन. गॉट इट? So students, just now we have talked about the contribution of the rich peasants, the poor peasants and the business class. वो तो हमने बात कर लिया. इसमें certain dates were there that I wanted you all to follow, that I wanted you all to see. Apart from that, children, some dates are here. कुछ dates यहाँ दिए हुए थे जो कि important dates that are there कि you should know. क्या होता है ऐसे तो इन CBSE dates are not asked, but then the answers that you are writing, आप जो आंसर्स लिख रहे हैं उसमें आपको dates मेंशन करना ज़रूरी रहता है. अगर आप dates मेंशन करेंगे your answers will look good. I'm being in history, being a history person, I always feel कि certain important points and certain important topics dates are needed. यहाँ पे पहला जो है दैट इज़ 1918 एंड 19 यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र. अप्रैल 1919 में हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग. जनवरी 1921 में वी फाइंड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, जनवरी 1921 में ऑफ कोर्स. एंड फेबररी 1922 में चिल्ड्रन वी फाइंड चौरी चौरा, एज यू नो इट वेरी वेल. क्या होता है इन हिस्ट्री, पहला तो हिस्ट्री अभी क्या होता है 2 दिन पहले क्या हुआ है ये तो याद रहता नहीं है. हिस्ट्री में कैसे याद रहेंगी? तो यू रियली नीड टू मेंटेन अ सीक्वेंस.
हम इसमें क्या करते हैं, सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। सो मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू, उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अडॉप्ट्स द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। 1930 में क्या हुआ, अंबेडकर एस्टैब्लिशेस डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज वर्किंग वेरी नाइसली इन इंडिया। आपस में लड़ते रहेंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को। ओके 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, 31 में ही एंड सिविल डिसोबीडियंस, एंड 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड 30 में सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च्ड। बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है 1920 से लेके 32 तक का, तो एक बार आप देख लोगे तो आपको याद रहेगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।